Hmm. So today I am going to start a new topic, that is normalization. Okay, so first let me talk about the background why we need normalization. So actually, we have seen that in order to automate an organization, you need to first develop a ER diagram of the enterprise. Okay, why we need ER diagram? So that we can model what data we are going to handle, what are the entities there, what are the relationships that are involved, and uh, what are the semantics associated with those data items. So we have seen that we can model an organization in form of an ER diagram. Okay, so that tells a lot about what will be the design of your database. Hmm? So when we develop a ER diagram, then what we do next, we convert that ER diagram into a set of relations. Okay, so after this process, we have a set of tables with us, है ना? Now question arise होता है कि is that design is good enough, or do we need to do something else, something more? Okay, so this is very important question. When we have a database design in form of set of tables, then we need to have a mechanism to evaluate that design. ठीक है, अगर हमने एक डिज़ाइन बना लिया है तो देन वी शुड बी एबल टू नो और वी शुड बी एबल टू डिसाइड इन सम वे दैट ओके लुक दिस डिज़ाइन इज़ वेरी गुड और दिस डिज़ाइन हैव दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना? तो वी नीड टू इंश्योर कि जो हमने ईआर डायग्राम से हमें जो डिज़ाइन मिला है, जो दैट इज़ कॉल्ड जनरली लॉजिकल डिज़ाइन. सो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का जो लॉजिकल डिज़ाइन मिला है, दैट वी नीड टू ट्रांसलेट इनटू द एक्चुअल डिज़ाइन. बट before going to translate it into the databases, we first need to assure ourselves or your team members that okay, this design is good one, this design will fulfill our need, or this is as per our objective. Okay, so now question arise hota hai कि how we will say that this design is good or other design is bad, है ना? So we should have some mechanism to decide. So the mechanism means we should have a scientific way to prove and show that this design is good enough, है ना? So the topic that we are going to discuss will give you the answer to this is problem. Okay, we will see that what is a so before going to define what design is good design, first we need to understand which design is a bad design. Okay, when we know what is bad, what is good, only then we will able to decide कि which one is good. ठीक है, सो गुड और बैड जो है ना रिलेटिव एक दूसरे के होते हैं, है ना? जब तक आप बैड नहीं जानते क्या है, देन यू कैन नॉट डिसाइड व्हाट विल बी द गुड. ओके, सो जो गुडनेस है वो जनरली पहले बैडनेस के प्लेटफॉर्म पर डिफाइन होती है कि लुक दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन इज़ बैड डिज़ाइन, एंड इफ़ अगर ये डिज़ाइन में ये बैडनेस नहीं है, देन आवर डिज़ाइन विल बी गुड, है ना? सो वी नीड टू हैव ए साइंटिफिक वे टू डिफाइन दिस. So first we will talk about how we will have a good design or how we will decide a good design. One more thing, once we have come up with a design with the help of ER diagram, now we need to understand or evaluate that whether this design is good, or if this design is good, not good, then we need some mechanisms so that we should be able to refine that design. जो हमारे पास डिज़ाइन आया है हम उसे मॉडिफाई करें और उसे इम्प्रूव करें, सो दैट इट विल, अगर वो गुड नहीं है सो इट शुड बिकम गुड, है ना? सो वी नीड ए मैकेनिज्म. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट व्हाट इज ए बैड डिज़ाइन, बैड डेटाबेस डिज़ाइन. So we can call a database design if
we can mark a database design as a bad design if it have following issues. Let me write them, list them, and then we will discuss them one by one. First is redundancy. Okay, number one, let me make it one. Second, there are some set of anomalies that may be present in our database. We will call them. One is anomaly. Then we have deletion anomaly and updation anomaly. So actually these are the four problems mainly bad database design have. Okay, let me define first. आप इससे पहले से introduce है redundancy. Redundancy means duplication of same information. That means when same information is coming at many places, then we say that our database design have redundancy. Now question arise होता है कि how much redundancy we should permit. So there is no absolute answer of that कि कितनी redundancy permitted है, but our goal will be to minimize this redundancy. ठीक है, so we would like to minimize the redundancy. Okay, now you should also understand that or convince yourself that redundancy is not always a bad thing. Redundancy is also sometimes is a good thing. For example, suppose you have a database and so database contains your data, which is very important for any organization. Suppose bank have its database. So if suppose that we do not want to have redundancy and we only store our database at one place, assume करिए. So let's say SBI bank का example ले लेते हैं. If suppose that SBI bank is there, bank, and it's just stores its data at one place in a country, let's say in Mumbai. Okay, they store whole data in Mumbai. Now what may happen, some natural disaster may come in Mumbai and your data center where your data is residing may go down, or because of some disaster your data center is completely destroyed. So you lost whole of your data. Now is it a good situation for you? No. No organization would like to face this kind of situation where they lost whole data. You can assume or you can think of that kind of situation. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डेटा लॉस्ट हो जाता है. सो बैंक ने किसको लोन दिया, किसका कितना डिपॉजिट था, और एवरीथिंग विल बी लॉस्ट, है ना. सो दिस इज़ अ वेरी disastrous situation. So no organization would like to face this kind of situation. So what they need to do now, it is always obviously we have to replicate our data at multiple sites, है ना. So हमें सेम डेटा को या पीसेस ऑफ डेटा को अलग अलग जगह पर रिप्लिकेट करके डुप्लीकेट फॉर्म में कॉपी करके रखना पड़ेगा बैकअप के तौर पर, ठीक है, एंड अलग अलग साइट्स पर रखना पड़ेगा. सो दैट अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आती है तो कुछ साइट्स अगर लॉस्ट भी, कुछ साइट्स अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं, देन कुछ साइट्स का डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है तो बाकी अदर साइट से हम डेटा को रिकवर कर पाएँ. ओके, सो रिडंडेंसी इज़ नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग, it is also required at some extent. Okay, but our the main goal will be we should not have too much redundancy, we need to minimize it. Okay, so we will see that in the normalization process we try to minimize it. Then that there are I have talked about 3 anomalies. So anomaly means hota hai, anomaly means a
अनडिजायरेबल और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो रेगुलरली ऑकर नहीं होती है बट इट मे ऑकर सम टाइम. सो ये बैड डेटाबेस डिजाइन में फेस 3 काइंड ऑफ bad design database anomalies we can say. So these anomalies are insertion anomaly, deletion anomaly and updation anomaly. Let's talk about first insertion anomaly. Now suppose that you came up with a design. Now there may be a issue when you enter a database enter a record in your table. So your design may not allow you to enter a particular record in your database. Let me repeat again. You have a table with some design. Now you want to enter a record into that table. Now suppose that because of this design of the table, you are not able to insert a record into the table. Suppose that. This kind of problem will called insertion anomaly, because your design is not allowing to insert a specific information into your database. दिस विल बी कॉल्ड इंसर्शन एनोमली. मतलब आप एक डिज़ाइन के कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप उसमें कुछ डेटा इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं. सो ओबियसली दिस सिचुएशन इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू. आप कुछ डेटा डेटाबेस में रखना चाहते हैं बट जो डेटाबेस में जो डिज़ाइन है डिज़ाइन की वजह से डेटाबेस अपने आप कुछ कंस्ट्रेंट लगा देता है अपने ऊपर. ठीक है, वी हैव सीन दैट. Okay, so whenever you design a database, so actually database design automatically brings up some set of constraint with it. So because of that designs constraint, जो डिज़ाइन अपने आप कुछ कंस्ट्रेंट लेकर के आया है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लेकर के आया है, उनकी वजह से you may not be able to insert some data into your table. This is called insertion anomaly. Similar thing can also happen with deletion and updation. So for example, suppose you delete some record from a table, but deletion of because of deletion of some record, you may lose some other precious information. Okay, some other precious information. That problem is known as deletion anomaly. I will take examples of these so you will be able to understand what I mean. Then similarly, whenever you, let's say, update some record, because of updation you may lose again certain information. That is called updation anomaly. So let's come back to the slides where we will discuss some of the examples of these issues. Now are you able to see this table? There is a table. Are you able to see? Okay, so we do not bother about the name of the table. So suppose you have a table. Now maybe the possibility है कि आपने एक database design बनाया, उसमें आपने you did not identify department entity set. Suppose that आपने database का जो design बनाया, ER diagram बना रहे थे, तो you did not identify डिपार्टमेंट एंटिटी सेट, आपने केवल स्ट्रक्चर एंटिटी सेट आइडेंटिफाई किया और उसमें ये एट्रीब्यूट्स आपने लिस्ट कर दिए. सपोज दैट. सो योर इंस्ट्रक्टर एंटिटी सेट जो बनाया है आपने, या जो भी एंटिटी सेट बनाया उसमें आपने इंस्ट्रक्टर की आईडी लिया, इंस्ट्रक्टर का नेम लिया, सैलरी ली, इंस्ट्रक्टर का डिपार्टमेंट लिया और इंस्ट्रक्टर जिस बिल्डिंग में बैठ रहा है वो बिल्डिंग ली. दैट मीन्स उसके डिपार्टमेंट की बिल्डिंग और उसके डिपार्टमेंट का बजट. ठीक है, सो आपने केवल इंस्ट्रक्टर एंटिटी सेट आइडेंटिफाई किया और उसके साथ ये एट्रीब्यूट्स एसोसिएट कर दिए. एंड नाउ ओबियसली जब आपने ये एट्रीब्यूट एसोसिएट किए एंड दिस इज एन एंटिटी सेट, सो यू विल एंड अप विद दिस काइंड ऑफ टेबल. आपने एक टेबल बनाई है. सो दिस इज योर डिजाइन. सपोज दैट. नाउ कैन यू सी हियर दिस डिजाइन हैव लॉट ऑफ रिडंडेंसी. कैन यू सी? कैन यू ऑब्जर्व द रिडंडेंसी हियर? No. So let me tell you. You can see that computer science department is in Taylor building, है ना. From this record you can observe computer science department की जो building है that is Taylor, है ना. Now you can see again computer science के साथ Taylor आपको दिखाई दे रहा है. computer science Taylor. So the fact that computer science department is established in the Taylor building is repeated twice here, है ना. Yes or no? Similar may be true for other departments also. For example, physics department is running from Watson building
and the same thing, same information is again repeated here. Physics department is running from Watson building, है ना. Similarly, history department is working from Painter building. So you can see that this information that a particular department is running from a particular building is being repeated. Similarly, you can also observe that physics department budget is $70,000, and this fact that so you can see whole the fact that physics department is running in Watson building. अगर दोनों को combine करके देखें, and physics department's annual budget is, let's say, $70,000. So this fact is repeated again at this point of time, at this place. Physics department, building name Watson, and budget is 70,000, है ना. सिमिलरली कंप्यूटर साइंस के लिए भी है, टेलर बजट. सो बजट इज अगेन रिपीटेड. आप इन दोनों को सेपरेट करके भी देख सकते हैं. कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का बजट $1,00,000 है, एंड दिस फैक्ट इज रिपीटेड एट 3 places. नाउ यू कैन अज्यूम दैट नाउ दिस इज ए स्मॉल टेबल, ठीक है, दैट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग होल डेटा ऑफ योर डेटाबेस. सो अगर एक यूनिवर्सिटी में मे बी इट मे हैव थाउजेंड्स ऑफ फैकल्टीज, अगर एक लार्ज ओल्ड यूनिवर्सिटी है, इट मे हैव थाउजेंड्स ऑफ फैकल्टीज, okay, and in a department, within a department maybe hundreds of faculties may be there, or 50 or 100 तक faculties हो सकते हैं. So again, at every time this information will be repeated. For each faculty this information will be repeated. For each faculty in the computer science or each instructor in the computer science, this information that computer science building is running from Tennell building and computer science department's budget is $1,00,000. This fact is being repeated at many places. जितनी जगह इंस्ट्रक्टर्स हैं ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस के, उतनी जगह रिपीट हो रहा है. जबकि ये एक जगह होता तब भी दैट वाज एनफ. सो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट देयर इज लॉट ऑफ रिपीटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड, जो अवॉइड किया जा सकता था. वी विल सी दैट कैसे अवॉइड होगा. ओके, सो दैट मीन्स दिस डिजाइन हैविंग रिडंडेंसी. सो अब जो फर्स्ट पॉइंट था बेड डेटाबेस डिजाइन का, वो हमें मार्क करना था कि रिडंडेंसी. सो वी हैव सीन दैट दिस डिजाइन इज हैविंग रिडंडेंसी. सो रिडंडेंसी इज अवेलेबल. देन लेट्स टॉक अबाउट इंसर्शन एनोमली. ओके, नाउ लेट्स अज्यूम there is a department in university that is newly opened. Let's assume that department is physical education, and it is being let's say running in Rani Lakshmibai building. Okay, assume that, and its budget is, let's say, $1,00,000. Annual budget is $1,00,000. Now can you insert this fact in this table? नाउ इस टेबल में याद रखना है कि जो प्राइमरी की है इस टेबल में वो क्या है, इंस्ट्रक्टर की आईडी और डिपार्टमेंट नेम. अगर आप थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे तो इंस्ट्रक्टर की आईडी और डिपार्टमेंट नेम से, या अकेले आईडी से आप डिपार्टमेंट नेम को लेने की ज़रूरत नहीं है. आईडी इज ऑलवेज यूनिक. सो इंस्ट्रक्टर की आईडी ही प्राइमरी की है आपके, है ना. इंस्ट्रक्टर आईडी इज द प्राइमरी की. सो नाउ obviously the instructor id is the primary key. This is the constraint that is coming due to this design, है ना, क्योंकि ये एंटिटी सेट है. एंटिटी सेट है तो एंटिटी सेट में एक यूनिक एट्रीब्यूट होना चाहिए जो से हर एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करे और उसकी वैल्यू रिपीट ना हो, और एवरी एंटिटी शुड हैव दिस वैल्यू. सो इंस्ट्रक्टर आईडी इज दैट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट. सो यू विल मेक इट प्राइमरी की, है ना, जो डिजाइन में ही आ गया कि दिस एट्रीब्यूट इज द प्राइमरी की. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट can you insert a information of this kind of department जिसका नाम let's say फिजिकल एजुकेशन है, बजट $1,00,000 है, बिल्डिंग रानी लक्ष्मीबाई है. Can you insert this record? And I am also saying that there is no appointment has been made in this department because this is newly established department. Will you able to insert this record in this table? No, because database will not allow a record that do not have any value of primary key. और प्राइमरी की वैल्यू तभी आप दे पाएंगे जब डिपार्टमेंट में कोई इंस्ट्रक्टर हो, एंड आप जानते हैं डिपार्टमेंट में उसमें कोई भी इंस्ट्रक्टर नहीं है. दैट मीन्स विदाउट आईडी इट इज़ नेसेसरी. इसमें तो नल भी अलाउड नहीं है,
है ना, आईडी कॉलम, क्योंकि बिकॉज इट इज़ ए प्राइमरी की. सो दैट मीन्स यू विल नॉट इंसर्ट दिस इंफॉर्मेशन इन द टेबल, है ना. सो अगर आप कोशिश भी करेंगे तो आईडी को आपको नल रखना पड़ेगा, बिकॉज देर इज़ नो इंस्ट्रक्टर. सो आईडी विल बी नल, है ना. देन इंस्ट्रक्टर्स नेम शुड बी नल. देन इंस्ट्रक्टर का डिपार्टमेंट नेम तो जो है सो वो फिजिकल एजुकेशन है, हो गया. somebody having his or her mic open, so please make it off. फिजिकल एजुकेशन. सो डिपार्टमेंट का नेम तो आपका सॉरी फिजिकल नेशन मुझे यहाँ लिखना था, डिपार्टमेंट नेम यहाँ, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट. एंड सो फिजिकल ये वैल्यू तो आपके पास अवेलेबल है. बिल्डिंग नेम भी आपके पास अवेलेबल है. सो यू विल स्पेसिफाई बिल्डिंग. सो लेट्स से रानी लक्ष्मीबाई. एंड बजट की भी वैल्यू आपके पास है. कोई एक और चीज़ छूटी हुई है, सैलरी. अच्छा, सो सैलरी है, उसमें आपने नल रख दिया. ओके, बजट लेट से 1 लाख डॉलर. क्या आप ऐसा इंसर्शन कर पाएंगे जिसमें प्राइमरी की वैल्यू खुद ही नल हो? सो नो डेटाबेस विल अलाउ दिस काइंड ऑफ इंसर्शन रिकॉर्ड टू बी इंसर्टेड. ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसर्शन एनोमली. ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसर्शन एनोमली. सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया इंसर्शन एनोमली का मतलब क्या है. ये डेटाबेस का डिज़ाइन हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करने की परमिशन ही नहीं दे रहा है ना. और ये ऑर्गेनाइजेशन में होता है अक्सर. मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज डज दिस काइंड ऑफ थिंग, दैट वो डिपार्टमेंट ओपन कर देते हैं, बिल्डिंग भी एलोकेट कर देते हैं कि इस बिल्डिंग में डिपार्टमेंट रन करेगा, बजट भी एलोकेट कर दिया, बट अपॉइंटमेंट नॉट हैज़ बीन मेड. नो अपॉइंटमेंट हैज़ बीन मेड. नाउ जब डिपार्टमेंट ओपन हो गया है तो ओबियसली उसकी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में होना चाहिए. और आपने चूँकि डिपार्टमेंट नाम से कोई एंटिटी पहले रिकॉग्नाइज नहीं की डिज़ाइन के टाइम पर, आपके दिमाग में नहीं आया है, जो भी है आपसे मिस्टेक हो गई, वट एवर द इशू इज़ दैट. सो यू डिड नॉट क्रिएट एनी प्लेस वेयर यू विल इंटर दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो ओबियसली आपको इसी टेबल में ये इंसर्शन करना है. एंड प्राइमरी की इज़ नॉट अलाउिंग टू डू दैट. दिस काइंड ऑफ एनोमली इज़ नाउन एज इंसर्शन एनोमली. सो ये जो प्रॉब्लम है आपके डिज़ाइन की वजह से है, क्योंकि आपने क्या किया है एक्चुअली, इसमें गलती से 2 एंटिटीज़ को एक साथ मर्ज कर लिया है, जबकि आपको डिपार्टमेंट को और इंस्ट्रक्टर को अलग अलग एंटिटी सेट बनाना चाहिए था. ठीक है, लेकिन आपने नोटिस ही नहीं किया. लेट्स से डिपार्टमेंट नाम की एंटिटी है, होना चाहिए. मिस्टेक हो सकती है ऐसी, क्वाइट पॉसिबल है. सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल वेयर यू आर नॉट एबल टू इंसर्ट ए रिकॉर्ड इन टू योर डेटाबेस because of the design of your table. Okay, similarly you might have faced deletion anomaly as well. So let me give you one example of deletion anomaly. Now again similar example मान लेते हैं हम कि suppose that यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है, let's say डिपार्टमेंट इज म्यूजिक है, नया न्यूली ओपनड है, और उसका बिल्डिंग लेट्स से वो तानसेन बिल्डिंग में रन करता है, और उसका बजट लेट्स से $50,000 है. और इसमें एक ही फैकल्टी थे, एक ही टीचर थे. कोई बताओ भाई म्यूजिशियन का नाम. गुलाम अली खां है, कौन है? चलिए मान लेते हैं हम गुलाम अली, है ना, गुलाम अली खान साहब. सो ही वाज ओनली वन फैकल्टी देयर, है ना. सो अज्यूम कर लीजिए कि आप इसी टेबल में म्यूजिक डिपार्टमेंट है जो तानसेन बिल्डिंग में रन करता है, इतना बजट है, और उसमें एक ही फैकल्टी है, गुलाम अली खान साहब थे. इनका मतलब आईडी होगी कुछ, सम आईडी में भी देयर, लेट्स से 101302, दिस वाज द आईडी. ओके, अच्छा इसमें 5 डिजिट की आईडी ली है साहब, है ना, 5 डिजिट के. 1 डिजिट मैं कम कर देता हूँ, ये वाला हटा देते हैं. सो दिस इज़ द डेटा, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, and he may be getting some salary. Let's say he may be getting $1 lakh salary annually, and this is the information. So now what you want to do is that,
So now this Ghulam Ali Khan Sahab, because of some personal reason or some reason, he left your university. उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी. Now obviously जब he has left university, so his record need to be deleted from the database, है ना. सो आप जब इनका रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो रिकॉर्ड में ऐसा तो नहीं होता है कि आप आधी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देते हैं. एक पार्ट 3 फील्ड गायब कर दिए और बाकी 3 फील्ड छोड़ दिए. इट डजंट हैपन इन योर डेटाबेस. सो डेटाबेस में इंसर्शन डिलीशन की जो मिनिमम यूनिट है दैट इज अ रिकॉर्ड. पूरा रिकॉर्ड इंसर्ट होता है और रिकॉर्ड ही डिलीट होता है. सो वेन एवर यू विल डिलीट ए रिकॉर्ड ऑफ सच काइंड ऑफ इंस्ट्रक्टर, the information about the department, like music department is running in Tansen building and its budget is 50,000, this information will also be lost. क्योंकि आपको पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना है और ये इन्फॉर्मेशन कि म्यूजिक डिपार्टमेंट आपकी यूनिवर्सिटी में है जो तानसेन बिल्डिंग में रन कर रहा है और उसका बजट 50,000 है, दिस इज अवेलेबल एट ओनली वन प्लेस इन योर टेबल. पूरे डेटाबेस में इसी टेबल में यही रिकॉर्ड में ये डेटा था. एंड आपने जैसे ये रिकॉर्ड डिलीट किया, दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गई. सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम जहाँ पे आपने इंस्ट्रक्टर को डिलीट किया, ध्यान रखिए, इंस्ट्रक्टर की डिलीशन की वजह से डिपार्टमेंट की भी इंफॉर्मेशन चली गई. एंड नाउ आपके म्यूजिक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन आपके डेटाबेस में कहीं है, बची ही नहीं है. सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज नाउन एज डिलीशन एनोमली. ओके, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज नाउन एज डिलीशन एनोमली. सिमिलरली प्रॉब्लम अपडेशन की वजह से भी हो सकती है. इसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं. ठीक है, okay, so let me think of about an example of updation anomaly. So updation anomaly may arise because of updation in your table. ठीक है, this problem will arise in updation of your table. So now let's assume that you change the डिपार्टमेंट ऑफ ए फैकल्टी. लेट्स से गुलाम अली खान साहब ही हैं, इनका डिपार्टमेंट आप चेंज कर देते हैं. ठीक है, इनको आप आर्ट एंड कल्चर में ट्रांसफ़र कर देते हैं. यू ट्रांसफ़र दिस फैकल्टी इनटू द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर. सो ओबियसली आप इनका क्या करेंगे, डिपार्टमेंट नेम बदल देंगे, म्यूजिक की जगह पे आर्ट एंड कल्चर, है ना. सो जैसे ही इनका जगह पर डिपार्टमेंट नेम म्यूजिक आर्ट एंड कल्चर आएगा तो आर्ट एंड कल्चर की बिल्डिंग का नाम लिखेंगे आप उनकी इसी रिकॉर्ड में. एंड बजट भी चेंज करेंगे, आर्ट एंड कल्चर का जो बजट है वो यहाँ कॉपी करेंगे. सो ऑब्वियसली अगेन म्यूजिक डिपार्टमेंट की आपकी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गई फिर से. ओके, सो दिस इज कॉल्ड अपडेशन एनोमली. सो अपडेशन एनोमली ऑकर्स बिकॉज ऑफ सम अपडेशन. ठीक है, सो आपने कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट की लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड थी नहीं भी रिलेटेड, दैट इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू लॉस्ट फ्रॉम योर डेटाबेस. सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स are called anomalies in the database. So your database might have 3 anomalies: insertion, deletion and updation anomalies. So now your main objective will be to identify these anomalies from your relation. So आप जितनी भी टेबल्स आपने बनाई हैं आपको हर टेबल को चेक करना पड़ेगा कि इनमें ये एनोमलीज तो नहीं है. सो अगर आपके डेटाबेस में सारी टेबल्स में से किसी भी एक टेबल में आपने ये एनोमली ढूंढ ली, then you will say that your database design is not good, it is a bad database design. So जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका database design bad है, now you are in problem. Now question arise होता है, next you will raise the question, then how we will convert our bad database design into good database design? Is there any way to do that? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारा जो डेटाबेस डिज़ाइन है उसमें कुछ कुछ टेबल्स में बैड डिज़ाइन आ गया है और उसकी वजह से हमारा पूरा डेटाबेस का डिज़ाइन हम बैड डेटाबेस बोल रहे हैं उसको, तो क्या हम इसे इम्प्रूव करके अच्छे डिज़ाइन में ला सकते हैं? आंसर इज यस, ओबियसली वी कैन ब्रिंग दैट. ठीक है, वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर बैड डेटाबेस डिज़ाइन
into good database design. So उसके लिए ज़रूरी है, वी विल डिस्कस सम डेफिनेशंस लेटर. सो जो मेनली हम इसमें क्या करते हैं कि आप अभी तक समझ गए होंगे इसमें जो मेन इशू था इस प्रॉब्लम, इस टेबल की अगर हम बात करें, सो यू माइट हैव अंडरस्टूड कि इस टेबल में प्रॉब्लम क्या है ना. साफ साफ प्रॉब्लम समझ में आ गई कि आपको इंस्ट्रक्टर को डेटा को अलग करना है और डिपार्टमेंट के डेटा को अलग करना है. दैट मीन्स वी यू नीड टू ट्रांसफॉर्म दिस टेबल इनटू 2 टेबल्स. आप इस टेबल को 2 टेबल्स में डिवाइड कर दें. अगर कैसे कैसे, एक आप बना दें इंस्ट्रक्टर टेबल बना दें जिसमें आईडी हो, नेम हो, सैलरी हो एंड एक और कॉलम होगा, मैं इस पर बाद में आऊँगा. दूसरी टेबल आप बनाएंगे डिपार्टमेंट, DEPT अंडरस्कोर नेम, देन बिल्डिंग, देन बजट. ठीक है. नाउ एक चीज़ और, दिस इन दिस वे जब आप एक टेबल को किसी 2 टेबल्स में या 2 से ज़्यादा टेबल में डिवाइड कर देते हैं, देन दिस प्रोसेस इज नाउन एज डिकम्पोजिशन. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिकम्पोज्ड द ओरिजिनल टेबल जो मैंने स्लाइड में दिखाई थी. दैट टेबल हैज़ बीन डिकम्पोज्ड इनटू 2 टेबल्स, स्मॉलर टेबल्स में डिवाइड कर दिया है. सो दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन. सो जनरली हम जब बैड डेटाबेस डिज़ाइन हमारे पास होता है, देन वी डू सर्टन डिकम्पोजिशन और वी एंटर इनटू डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ द टेबल्स. जो जिन टेबल्स में बैड डेटाबेस डिज़ाइन हमें दिख रहा है, तो हम उन डेटाबेस डिज़ाइन को उन टेबल्स को, रिलेशंस को डिकम्पोज कर देते हैं स्मॉलर रिलेशंस में. ठीक है. नाउ डिकम्पोज करने के लिए नाउ आप देखेंगे तो अब 2 तरीके से डिकम्पोज कर सकते थे. एक तो ये है कि आपने ये इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए. आपने एक क्या किया, इंस्ट्रक्टर आईडी, नेम, सैलरी एक कॉलम बना दिया और डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग, बजट बना दिया. ओके. नाउ अब आप देख रहे होंगे इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, क्या मैं इन दोनों डेटा से, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, इन दोनों टेबल से मिलाकर के ओरिजिनल टेबल जनरेट कर सकता हूँ? इज देयर एनी वे टू जनरेट द ओरिजिनल डेटा, जो आपकी जो बैड डेटाबेस डिज़ाइन वाली टेबल में जो डेटा था वो इन दोनों से कंबाइन से बन जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा. नाउ बिकॉज देयर इज नो वे टू कंबाइन दोज टेबल्स. कौन से इंस्ट्रक्टर का क्या डिपार्टमेंट है, या सपोज जैसे मैं पूछता हूँ इंस्ट्रक्टर आईडी 10120, इनके डिपार्टमेंट का बजट बताइए. यू विल नॉट बी एबल टू टेल मी दैट, बिकॉज देयर इज़ नो वे जहाँ से आप ये पर्सन का डेटा लेकर के मैच करा के देख पाएँ कि इनके डिपार्टमेंट का बिल्डिंग कौन है और बजट, बिल्डिंग कौन सी और बजट क्या है. ओके. सो अगर आप इस तरीके से डिकम्पोज करते हैं डेटा को, सो दिस डिकम्पोजिशन विल बी कॉल्ड लॉसी डिकम्पोजिशन. इनकी डेफिनेशन पर हम बाद में भी रिविजिट करेंगे. लॉसी डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि आपने जो टेबल्स बनाई हैं, स्मॉलर टेबल्स, उनको कंबाइन करने से, दैट मीन्स उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, या जनरली हम कहते हैं ज्वाइन करने से, ओरिजिनल टेबल में जो डेटा है वो पूरा का पूरा एज इट इज जनरेट हो जाए, तो हम कहेंगे कि डिकम्पोजिशन आपका लॉसलेस है, अदरवाइज लॉसी होगा. सो आपका जो डिकम्पोजिशन है 2 तरीके का हो सकता है, लॉसी एंड लॉसलेस. सो यू कैन हैव 2 काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन. लेट मी चेंज द कलर. सो यू कैन हैव 2 काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन. You might have lossy one decomposition. I'm not repeating the decomposition word. Or you can end up with lossless decomposition. So lossless decomposition क्या कहलाता है? लेट्स से आपने एक टेबल A थी, इसे 2 टेबल्स A1 और A2 में बांट दिया. अब आप किसी तरीके से इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करके या कार्टेशियन प्रोडक्ट करके ओरिजिनल टेबल में जो A में जो डेटा था, इन दोनों के डेटा से ओरिजिनल A का डेटा जनरेट कर पाते हैं, तो आप कहेंगे लॉसलेस है. दैट मीन्स हम वापस इन दोनों टेबल्स को कंबाइन करके इस टेबल के डेटा को जनरेट कर पाएँ ज़रूरत पड़ने पर. देन वी विल से दैट वी हैव लॉसलेस डिकम्पोजिशन. लॉसी डिकम्पोजिशन कब होगा? जब आपने इन दोनों टेबल्स का डेटा कंबाइन किया
बाय ओबियसली नेचुरल जॉइन से कंबाइन करें या कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो ओरिजिनल डेटा ना जनरेट हो पाए। इसमें जितने रिकॉर्ड्स हैं उससे कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड्स जनरेट हो जाएं या कुछ कम रिकॉर्ड्स जनरेट हो पाएँ, एटलीस्ट एक रिकॉर्ड भी कम रह गया तो हम कहेंगे कि हमारा डिकम्पोजिशन लॉसी है। ठीक है, सो हमारा ऑलवेज ऑब्जेक्टिव होगा जब हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। सो ठीक है, ये जो डेटाबेस के रिफाइनमेंट की जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। आई विल डिफाइन इट फॉर्मली लेटर। सो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि आपका जो डिकम्पोजिशन हो वो लॉसलेस होना चाहिए। ठीक है, सो वी शुड हैविंग लॉसलेस डिकम्पोजिशन so that we can recover the original data whenever we required। ठीक है, ओरिजिनल डेटा जनरेट कर पाए। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ बैड डेटाबेस डिजाइन। ठीक है, सो दिस वाज द स्टोरी एसोसिएटेड विद बैड डेटाबेस डिजाइन। सो नाउ बैड डेटाबेस डिजाइन हमने डिफाइन कर दिया, तो ओबियसली व्हाट नाउ कैन यू कैन इजीली डिफाइन व्हाट डेटाबेस डिजाइन विल बी कॉल्ड गुड डेटाबेस डिजाइन। ओबियसली जो डेटाबेस डिजाइन बैड नहीं है वो गुड होगा, है ना, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। So that means a good database design will be called good database design if number one it doesn't have redundancy, that means it have minimum redundancy, doesn't have तो कहना ठीक नहीं है, it have minimum redundancy, then there is no insertion, updation and deletion anomaly in the database। so अगर किसी भी टेबल में ये तीनों anomalies नहीं है और redundancy भी minimum है, then we say that our database design is good। okay, now still we need some more formal mechanism to say that this design is good। और good है तो कितना good है, because good is a qualitative term, है ना। so अच्छा, कितना अच्छा, किसी के लिए अच्छा जो ना नहीं अच्छा होता है फिर भी। जैसे आपके लिए हो सकता है कि प्रमोद स्वीट, कोई कहेगा प्रमोद स्वीट अच्छा है, प्रमोद स्वीट का लड्डू अच्छा है, कोई कहेगा नहीं ठीक सो है, कोई कहेगा बहुत अच्छा है ना। तो एक ही चीज़ है लेकिन किसी के लिए वो अच्छी है, किसी के लिए ओके है, किसी के लिए बहुत अच्छी है, किसी के लिए बहुत 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 अच्छी है ना। सो लोग अपने अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं उसको। बिकॉज दिस इज टेस्ट इज ए काइंड ऑफ क्वालिटेटिव टर्म, है ना। टेस्ट क्वालिटेटिव होता है, तो टेस्ट इज रिलेटिव टू पर्सन। सबको अलग अलग एक ही चीज़ जो ना अलग अलग तरीके से लग सकती है और फिर वो उसको अलग अलग तरीके से अपनी अपनी स्केल पर बताते हैं कि अच्छा है, ख़राब है, ऑल दैट। ठीक है, सो सिमिलरली डेटाबेस डिजाइन जो है ना गुड है, तो आप उसे बताएंगे कैसे कि कितना गुड है। यू शुड हैव सम क्वांटिफिकेशन, है ना, यू शुड हैव सम मेजर टू क्वांटिफाई कि कितना गुड है। एंड अगर बैड है, somehow you said that is bad, तो वो कितना बैड है और फिर उस बैड को कैसे हम ट्रांसफॉर्म करें गुड में। ओके, सो नॉर्मलाइजेशन इज एक्चुअली ए प्रोसेस। लेट्स कम टू द नॉर्मलाइजेशन नाउ। सो ओबियसली अगर सिंपल टर्म्स में हम अगर समझें तो नॉर्मलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है दैट ट्रांसफॉर्म्स ए बैड डेटाबेस डिजाइन DESIGN। तो आपके पास एक बैड डेटाबेस डिजाइन है, आप एक मिनट, लेट मी चेंज दिस डायग्राम, कुछ मैं अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट वाला टाइप का कन्वेंशन ले रहा हूँ। ओके, सो मैं इनपुट है ना, इसको इनपुट को फ्लो चार्ट में जैसे इनपुट दिखाते हैं वैसे दिखाना चाहता हूँ। सो यू हैव ए बैड डेटाबेस डिजाइन। ठीक है, डेटाबेस को मैं शॉर्ट में DB लिख रहा हूँ। यू हैव ए बैड डेटाबेस डिजाइन, यू हैव ए प्रोसेस हियर that is called normalization। that is normalization को आपने ये दिया एंड आउटपुट में you get a good database design। ठीक है, सो बहुत शॉर्ट में नॉर्मलाइजेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। सो नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म्स ए बैड डेटाबेस डिजाइन इनटू ए गुड डेटाबेस डिजाइन।
है ना, बहुत सिंपल है. दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन यू कैन हैव. ओके, नाउ वी विल डिफाइन इट फॉर्मली. थोड़ा सा और मैथमेटिकली रिगरसली डिफाइन करेंगे. सो नॉर्मलाइजेशन इज एक्चुअली ए, यू कैन से इट इज ए साइंटिफिक प्रोसेस that transforms a bad database design into a good database design. Okay, so it uses a mathematical set of definitions and constructs to transform a bad database design into a good database design. Okay, so first let me define a normal form. So normalization process consists of multiple normal forms. A normal form defines a set of constraints based on, आई एम यूजिंग वन टेक्निकल टर्म जिसे मैं अभी बाद में बताऊँ समझाऊंगा आपको, फंक्शनल डिपेंडेंसीज. ठीक है, नेसेसरी नहीं है फंक्शनल डिपेंडेंसीज लिखना, लेकिन आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट. ठीक है, ए नॉर्मल फॉर्म, सॉरी आई हैव मिस्ड समथिंग देयर. ए नॉर्मल फॉर्म डिफाइंस अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स बेस्ड ऑन एफडीज. ठीक है, आप इसे इस पार्ट को, इतना पार्ट को डेफिनेशन से स्किप कर सकते हैं, बिकॉज दिस पार्ट वी विल डिस्कस. सो ए नॉर्मल फॉर्म डिफाइंस अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स दैट a database design should satisfy. ठीक है, सिंपल वर्ड में लिखना. ठीक है, सो दिस इज द मोर बेटर डेफिनेशन ऑफ ए normalization that we are going to define. So for that we first need to define a normal form. What is the meaning of a normal form? So a normal form defines a constraints that a database should satisfy. Okay, so that means a normal form means a set of constraints that a database should satisfy. Okay, so we have different normal forms. That normal forms having some levels of rigorousness or strictness in terms of constraints. Okay, so let me tell you, there are multiple normal forms. First we will see first normal form. NF मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नॉर्मल फॉर्म को हम शॉर्ट में NF लिखते हैं. ठीक है, सो 1 NF लिख रहा हूँ. फर्स्ट को बोलते फर्स्ट NF है, ST लगाते नहीं है इसमें. ठीक है, आप चाहें तो लगा सकते हैं फर्स्ट NF. Then we have another normal form that is called second NF, 3 NF, then we have BC NF and so on. Okay, so what I have already told you that a normal form defines a set of constraints that a database should satisfy. Now there is a यू कैन डिफाइन, जैसे नंबर्स में होता है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3. सो देर इज एन ऑर्डरिंग ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर एक कह सकते हैं आप. सो दीज नॉर्मल फॉर्म्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रिक्टनेस. ठीक है, सो स्ट्रिक्टनेस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर. सो स्ट्रिक्टनेस मतलब आप और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंस्ट्रेंट लगाने जाते हैं. सो स्ट्रिक्टनेस इंक्रीजेज फ्रॉम लोअर टू हायर नॉर्मल फॉर्म. इसे हम बोलते हैं, फर्स्ट को बोलते हैं लोअर नॉर्मल फॉर्म, एंड देन टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज मोर हायर नॉर्मल फॉर्म टू द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज मोर हायर नॉर्मल फॉर्म टू द सेकंड नॉर्मल फॉर्म, एंड BCNF इज मोर हायर नॉर्मल फॉर्म देन 3NF. ठीक है, सो ये और ज़्यादा हायर होती चली जा रही हैं, हम इनको हायर बोलते जाते हैं. सो इनका लेवल इंक्रीजिंग लेवल ऑफ स्ट्रिक्टनेस है. सो दीज नॉर्मल फॉर्म्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रिक्टनेस. ठीक है, और यू कैन से दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रिक्टनेस.
ठीक है। और ये ऑर्डर इंक्रीजिंग का इस तरीके से बढ़ रहा है। फर्स्ट एन एफ कुछ स्ट्रिक्टनेस लगाती है, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट है बिकॉज इट स्पेसिफाइज सम मोर कंस्ट्रेंट्स। VCNF इज मोर स्ट्रिक्ट। देन देयर इज अ फोर्थ एन एफ, 4NF बोलते हैं हम इसको, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। देन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। देन समटाइम्स आप जो है ना उसको सिक्स्थ नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, PJNF बोलते हैं जनरली हम इसको, ठीक है। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, सिक्स्थ नॉर्मल फॉर्म, देन DKNF ऑल्सो। सो देर आर लॉट ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स दैट हैव बीन डिफाइंड इन research domain, but we will just focus on, mainly we will focus on these 4 normal forms. थोड़ा सा हम बाद में 4 और 5th के बारे में भी बात करेंगे, एंड 6th नॉर्मल फॉर्म जो DKNF है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सो 4th, 5th और DKNF जो नॉर्मल फॉर्म है उनके बारे में वी विल टॉक अबाउट। इनके बारे में बहुत हम ब्रीफ में बात करेंगे बिकॉज मेनली वी विल बी हैविंग दीज काइंड ऑफ अप टू दिस नॉर्मल फॉर्म अपने डेटाबेस को नॉर्मलाइज करते हैं। Okay, so now we have defined certain normal form. So now what we do, we have a database and we check that whether our database is satisfying this normal form. If yes, then our database is in first normal form. Okay, so we will say that our database is in first normal form if all the relations in the database satisfy the first normal form's condition. ठीक है। सो वी विल सी दैट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कंडीशन देती है। सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म स्पेसिफाई सर्टेन कंडीशंस दैट ए डेटाबेस और ए रिलेशन शुड सेटिस्फाई, ठीक है। जो नॉर्मल फॉर्म है पहले हम टेबल पर लगाते हैं। नाउ इफ ऑल द टेबल्स इन ए डेटाबेस सेटिस्फाई फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, तब हम कहते हैं कि आपका डेटाबेस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि आपका डेटाबेस में कुछ टेबल्स, एटलीस्ट एक टेबल अगर ऐसी हो जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, देन वी विल से दैट आवर डेटाबेस इज नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, वो बैड अननॉर्मलाइज डेटा है। बाकी फिर हम उसे सीधा अननॉर्मलाइज की कैटेगरी में डाल देते हैं। इफ योर डेटाबेस हैव ऑल द टेबल्स दैट सेटिस्फाई सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, देन वी विल से दैट आवर डेटाबेस इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर आपके डेटाबेस में मान लीजिए 10 टेबल हैं एंड ऑल दोज 10 टेबल्स सेटिस्फाइज द कंडीशंस गिवन बाय सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, देन वी से दैट आवर डेटाबेस इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। सारी टेबल सेटिस्फाई करना चाहिए सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को, तभी हम कहेंगे कि हमारा डेटाबेस सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। हाँ, अगर एक टेबल आपके सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो हम कहेंगे कि दिस टेबल इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। Similarly, we can say about 3NF and BCNF also. Okay, so these are the normal forms. Now, so if your database is in particular normal form, then we say that our database is normalized up to particular that normal form. So for example, suppose that आपने कहा कि मेरा database second normal form में है, तो हम कहेंगे कि हमारा database second normal form तक normalized हो गया है। So normalization is a process of transforming or bringing a database into desired normal form, ठीक है। So generally जो हम normalization करते हैं तो हमारा मोटिव होता है कि हम अपने database को थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक लेके आ जाएं। जो इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है, जब आप एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक आपको डेटाबेस को लेकर के आना होता है। दैट मीन्स आपका डेटाबेस 3NF की जो कंडीशंस हैं, तो उसमें जो डेटाबेस में सारी टेबल्स हैं, होल्ड ऑल द सेट ऑफ टेबल्स शुड सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ 3NF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ओके, जनरली ऐसा होता है कि BCNF जो है, जिसे हम बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, वी विल टॉक अबाउट ईच ऑफ दीज नॉर्मल फॉर्म्स लेटर। सो दीज नॉर्मल फॉर्म्स जो BCNF है वो जनरली अपने आप अचीव हो जाती है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। जैसे ही आप अपने डेटाबेस को 3NF में लाते हैं, वो BCNF अपने आप अचीव हो जाती है। कुछ केसेस में नहीं होती है तो हम अच्छे कर लेते हैं, ठीक है। सो हमारा बेस्ट डिजायरेबल और ज़्यादातर ऑप्शन होता है हम 3NF से BCNF तक अपने डेटाबेस को ले आएँ। सो हम 3NF में लाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हमारा BCNF में अपने आप आ जाता है। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट 3NF तक एनफ है। जनरली हम BCNF तक ट्राई करते हैं, लेकिन आपको BCNF तक ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप अचीव हो जाती है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, ठीक है।
बट यू शुड रिमेंबर हमेशा BCNF में आपको डेटाबेस नहीं मिलेगा, समटाइम्स हो सकता है BCNF में ना हो, तो आप ले आइए थोड़े से चेंजेस करके। और वो नॉर्मलाइजेशन करने का तरीका होता है डिकम्पोजिशन से लेकर के आते हैं। ओके, सो दिस इज द आइडिया ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नाउ द होल थ्योरी ऑफ नॉर्मलाइजेशन, सो जैसे मैंने कहा ना, कंस्ट्रेंट्स हम जो डिफाइन कर रहे हैं, these constraints are defined in terms of functional dependency. So there is a technical term that we will discuss from next class onward, that is functional dependency. So next class is very important. You if you do not understand the concept of functional dependency, you will not be able to understand the normalization process. ठीक है, सो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का जो फंडामेंटल है, और यू कैन से दैट नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का जो फाउंडेशन है, दैट इज द फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ओके, सो दीज द कंस्ट्रेंट्स जो हम नॉर्मल फॉर्म में दिखाते हैं, स्पेसिफाई करते हैं या बताते हैं कि ये कंस्ट्रेंट्स हैं, ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ओके, सो थ्योरी ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज वेरी important, or you can say it is central to the concept of normalization. Okay, so let's close for today. In next class we will discuss functional dependency. So I will request you to study the chapter 8 of your textbook. Okay, उसमें भी आप जो सारा टॉपिक जितना समझ में आ रहा है आप उतना पढ़िए, और कोशिश करिए कि फंक्शनल डिपेंडेंसी की अगर डेफिनेशन आप पहले से थोड़ा सा पढ़ के आएँ तो बेटर होगा। Okay, and this is very important topic, so you should not miss that topic. Okay, क्योंकि अगर फंक्शन डिपेंडेंसी समझ में नहीं आया, देन नॉर्मलाइजेशन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एंड दिस इज प्योर मैथमेटिकल पार्ट, दिस इज प्योर मैथमेटिकल टॉपिक। सो थोड़ा सा सेट थ्योरी का और अपने आप को ब्रशअप कर लेना, सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट अगर किसी को कहीं नहीं आते हैं या कुछ कन्फ्यूजन है तो। ओके, so let me close here.